जी मुझे पता चला आप लोग एमबीए फाइनल ईयर। ओके, चलिए पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ आप लोगों से। मेरा नाम अमित सुटेजा है। आई एम वर्किंग विद एज ब्रांच मैनेजर एट ब्रांच ऑफिस गुड़गांव। सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव heard of NSIC before? Anybody among you who has attended my lecture before? No. Okay. NSIC किसने सुना? किसने हाथ खड़ा किया था? हाँ जी, बताइए। That is correct, but how do we do that? How do we do that? हमारी कौन कौन सी स्कीम्स, एनी सर्विसेज यू आर अवेयर ऑफ? एनीबडी एल्स हु नोज अबाउट NSIC? नाम तो सुना है कि नहीं सुना? सुना? सिर्फ नाम ही सुना है, काम नहीं मालूम है। चलिए आज मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगा कि एक्चुअली NSIC करती क्या है और कैसे करती है। हमारा मेन जो मैंडेट है वो है स्मॉल इंडस्ट्रीज की हेल्प करना जो कि इंडिया में है। एनीबडी हु नोज द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज? स्मॉल इंडस्ट्री हम एक्चुअली कहते किसको हैं? नहीं मालूम? अरे MBA फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, SSI की क्या डेफिनेशन है? जी हाँ, कोई गैस? नहीं, वो तो प्रोजेक्ट हो गया। हाउ डू वी डिफाइन अ स्मॉल इंडस्ट्री? जी एग्जैक्टली दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ अ स्मॉल इंडस्ट्री। और एक्चुअली अब 2 अक्टूबर 2006 से स्मॉल इंडस्ट्रीज का जो बाइफर्केशन है वो 3 हिस्सों में हुआ है। 1 इज माइक्रो, 2nd इज स्मॉल एंड 3rd इज मीडियम। व्हाट शी हैज टोल्ड इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज। Micro industry is an industry wherein investment in plant and machinery is less than 25 lakhs, because small industry then starts from 25 lakhs up to 5 crores and 5 crore to 10 crore is medium. So the ministry of ours which is formerly known as Ministry of SSI is now known as Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. Previously we were not catering to micro and medium industries, and the definition of SSI was investment in plant and machinery up to 1 crore. So it has been enhanced to 5 crores from 2nd of October 2006, and now we are catering to micro also and medium also. So whatever schemes and services NSIC is offering are for micro, small and medium enterprises. Correct? ठीक है, तो we will start with that. इसके ऑडियो का कैसे करेंगे? ये दिस इज अवर कॉर्पोरेट फिल्म। इसमें बीच बीच में मैं रोक रोक के आपको जो हमारी स्कीम्स एंड सर्विसेज हैं उसके बारे में बताता रहूँगा कि हाउ डू दे एक्चुअली ऑपरेट, और आपके जो भी सवाल हो हम बीच में ही बात करके विल कैरी ऑन। ओके जी। A few wise Mesopotamians realized that a big object could be moved easily if something round, like a log, was placed under it to roll the object. That small thought eventually turned into the greatest invention of all times, the wheel. A small idea occurred to James Watt while observing a boiling kettle that became synonymous with the Industrial Revolution. A mere desire to fly made the Wright brothers to turn the impossible possible. A small step can scale mountains. A small dream can build a conglomerate.
A small idea can change the world, because small can make a big difference. That's why NSIC is committed to make a big impact with micro, small and medium enterprises. With 13 million MSMEs contributing 45% of industrial production, providing employment to about 31 million people with 40% export contribution through a range of over 8,000 products. Strengthening the backbone of our country's economy, offering new opportunities to tap new markets. Today, as an ISO 9000 company, driving the MSME sector for over 5 decades, NSIC is facilitating and creating employment opportunities by way of promotion and development of small enterprises in the country, with a vision to be a premier organization fostering the promotion and growth of micro, small and medium enterprises, and a mission to enhance the competitiveness of MSMEs by providing integrated support services under marketing, technology and finance. NSIC would to enhance the competitiveness of MSMEs by providing integrated support services under marketing, technology and finance. So NSIC provides a complete integrated support which includes marketing, technology, finance, and we are also providing information support to small industries. What is information support? This marketing to you understand, finance you understand, technology we will talk about, and another is the most important one is that information support. What can be an information support to NSSI? What can be an information support to NSSI? Information support is making the SSIs aware of various schemes and services offered by Government of India to them. Government of India is providing lot of subsidized schemes for small industries which even they are not aware of. So they are not able to get the full benefit of those schemes. So to make them aware of the schemes and services of Government of India, especially which are related to subsidy, that is our information support. There is no other organization in India which is providing this complete integrated support to small industries. This MSME DI is into trainings. Then KVIC is into funding. KVIC you ever heard of? KVIC, खादी विलेज. सी MSME की जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर 4 PSUs आती हैं. एक तो MSME DI है ही, उन्हीं की एक्सटेंडेड आर्म है. उसके बाद NSIC है और एक KVIC है और एक और भी है. Pardon? What is that? No state level organization. Choir board, exactly. Choir board. State हमारी जो है ये this is a central organization, central level. No state is involved in that. So ये 4 organizations हैं which are working under MSME ministry. और इनमें से सिर्फ NSIC ही एक ऐसी है where you will find all integrated supports, everything. Whether it is related to finance, it is related to marketing, it is related to technology. 75 offices spread all over the country has been promoting modernization, quality consciousness, strengthening of linkages with large and medium enterprises, and enhancing exports from MSME sector. NSIC is our premier organization of the ministry, and it is fully geared up to give assistance to Indian MSMEs in the field of technology, in the field of finance, in the field of marketing. I am sure Indian MSMEs will take full advantage of their competence, and this is essential so that they can improve their competitiveness, so that they can meet the future global challenges. The corporation provides a wide range of services in the areas of marketing, technology, credit,
and information support. Marketing assistance. अब एक एक करके विल गो थ्रू वेरियस स्कीम्स. सबसे पहले हम बात करेंगे मार्केटिंग असिस्टेंस की. हाउ डू वी हेल्प एसएसआईज इन मार्केटिंग. चलिए, आप लोग एमबीए के स्टूडेंट्स हैं, आपसे ही पूछ लेते हैं. मार्केटिंग के तरीके बता सकते हैं. व्हाट आर द वेरियस मीन्स ऑफ मार्केटिंग. डायरेक्ट मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सब सोच के बताना कि उसके बाद जैसे आपको अपने खुद की यूनिट के लिए एडवर्टाइजमेंट करनी है या मार्केटिंग करनी है, एंड यू आर एन एसएसआई, और आपके पास हमेशा पैसे की तंगी रहेगी. यू डोंट हैव, एसएसआई यूनिट्स डोंट हैव मच फंड्स टू स्पेंड ऑन मार्केटिंग. प्रिंट मीडिया, चलिए एक एक करके बात करते हैं. प्रिंट मीडिया, हाँ जी, जैसे कि लोकल न्यूज़पेपर में अगर आपको आधे पेज की एडवर्टाइजमेंट देनी हो, कितने पैसे लगते हैं? नहीं मालूम. अच्छा जी, क्वार्टर पेज की दे दीजिए. क्वार्टर पेज की बात कर लेते हैं. क्वार्टर पेज से नीचे तो कोई देखेगा भी नहीं. क्वार्टर पेज के कितने पैसे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में? 10,000 में क्या होगा? 10,000 में तो मैट्रिमोनियल ऐड नहीं आती ठीक से. कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये लगते हैं एक बार एडवर्टाइजमेंट आने के, क्वार्टर पेज के. और एक बार साल में दे दिया उससे तो काम चलेगा नहीं ना. कम से कम हफ्ते में एक बार तो आनी चाहिए. 52 हफ्ते, 52 मल्टीप्लाई हुए 25,000, कितने हुए? कितने हुए? वो भी एक न्यूज़पेपर, बहुत महंगा है. कुछ और? एनी अदर आइडिया? कोई और तरीका? बिलबोर्ड्स, बिलबोर्ड्स किए जा सकते हैं, वैसे सही कर सकती है जो अच्छा काम चल रहा है जिसका. पैम्फलेट्स तो आपको लोकल उसमें डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ठीक है, कर सकते हैं पैम्फलेट्स. फिर भी एक इकोनॉमिकल तरीका किया जा सकता है. हाँ जी, डायरेक्ट सेलिंग. डायरेक्ट सेलिंग कैसे? डोर टू डोर. प्रोडक्ट, एग्जैक्टली, डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट. सर्फ तो बेच सकते हो आप, बट अगर आपने कोई और इंडस्ट्रियल आइटम करनी है देन इट इज़ नॉट पॉसिबल. अगर आप किसी गाड़ी के फिल्टर बनाते हैं तो आपको डोर टू डोर नहीं जा पाएंगे. डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग का तो कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है. दैट इज़ द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट. और एग्जैक्टली, पार्टिसिपेशन इन एग्जीबिशंस. पार्टिसिपेशन इन एग्जीबिशंस, प्रगति मैदान में हर प्रोडक्ट की सितंबर के बाद में, अगस्त के बाद में रादर, हर महीने 3-4 एग्जीबिशन विच आर प्रोडक्ट स्पेसिफिक. और फिर आपको मालूम है वो लगता है ट्रेड फेयर, उसमें आप कर सकते हैं. प्रगति मैदान में स्टॉल लेने की कॉस्टिंग एनीबडी नोज? चलिए उसकी बात कर लेते हैं. इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की बात कर लेते हैं. 15 दिन के फेयर के लिए अप्रोक्सीमेटली कितने पैसे लगते हैं? अगर 9 स्क्वायर मीटर या 12 स्क्वायर मीटर का स्टॉल हो तो 1 लाख के आसपास है. 10,000 इस बार जो होने वाला है फेयर, उसके रेट आया है 10,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर. तो 1 लाख के करीब उसमें खर्चा है. तो हम आपकी मदद करते हैं फॉर पार्टिसिपेशन इन एग्जीबिशंस, वेदर दे आर डोमेस्टिक एग्जीबिशंस और इंटरनेशनल एग्जीबिशंस. और इसके अलावा भी कुछ हमारे यूनिक स्कीम है विच विल गो थ्रू नाउ. Is critical to the growth and survival of. दिस इज अवर डिस्प्ले सेंटर. हमने अपना जो कॉर्पोरेट ऑफिस है ओखला, उसमें ये एक डिस्प्ले सेंटर बनाया है जहाँ पे कि ये एसएसआई में बनने वाले प्रोडक्ट्स डिस्प्ले पे हैं. एंड इन अ ईयर वी गेट अराउंड 20 to 25 फॉरेन डेलीगेशंस अक्रॉस द ग्लोब, जो वहाँ आते हैं, यहाँ प्रोडक्ट्स देखते हैं. प्रोडक्ट्स देखकर जो उनको पसंद आता है उसके सप्लायर को कांटेक्ट करके उसको एक्सपोर्ट का ऑर्डर दिलाया जाता है. दिस इज वन ऑफ द वे. Small enterprises in today's competitive market. NSIC acts as a facilitator to promote MSMEs products and devises a number of schemes to support them in their marketing efforts. ये हमारी कुछ स्कीम्स हैं मार्केटिंग असिस्टेंस की. सबसे पहले सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम फॉर गवर्नमेंट परचेज रजिस्ट्रेशन. ये किसने लिखा है यहाँ पे? SPRS GP. कल की क्लास थी ये.
This is single point registration scheme and government purchase. सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम चलो आपने कल पढ़ा, तो बताओ क्या चीज़ है, क्या है सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम? कल की तो क्लास है, सिर्फ लिख के छोड़ के थे। अच्छा जी, पूछना पड़ेगा कौन आया था कल? अच्छा, गुप्ता सर आए थे आपके। ओके, सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम में क्या है कि अगर कोई भी एसएसआई यूनिट एनएसआईसी के साथ रजिस्टर्ड है अंडर सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम, तो उसे टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए अपनी कोटेशन के साथ अर्नेस्ट मनी जमा कराने की जरूरत नहीं होती है। अर्नेस्ट मनी क्या होती है? व्हाट इज अर्नेस्ट मनी? पार्ट ऑफ, नॉट द रजिस्ट्रेशन अमाउंट एग्जैक्टली। इफ यू डोंट गेट द टेंडर, नो नो, एक तो आपको टेंडर भी नहीं देंगे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और ऊपर से आपका पैसा भी ब्लॉक कर लेंगे। ऐसे कैसे? एक्चुअली अर्नेस्ट मनी का मतलब है जमानत। अर्नेस्ट मनी का मतलब है जमानत। अगर आप अपनी कोटेशन डालते हैं, उसके साथ जो टेंडर की वैल्यू होती है, सपोज 1 करोड़ का टेंडर है, तो उसका अप्रॉक्सीमेटली 5 से 10% जो अमाउंट है वो आपसे सिक्योरिटी के तौर पे लिया जाता है। वो इसलिए होता है कि अगर आपने ऑर्डर मिलने के बाद ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं किया, या आपने ऑर्डर एग्जीक्यूट करने से मना किया, तो वो जो आपके पैसे हैं वो गवर्नमेंट जो है फॉरफिट कर लेगी, जब्त कर लेगी वो पैसे। वो इसलिए है क्योंकि टेंडर करने में और उसकी सारी प्रोसेसिंग में गवर्नमेंट के कुछ एक्सपेंडिचर होता है, और आपने ऑर्डर मिलने के बाद अगर नहीं किया या मना कर दिया करने से, तो उस लॉस को कवर अप करने के लिए अर्नेस्ट मनी जमा कराना पड़ता है। और एक और अर्नेस्ट मनी लेने का कारण ये है, वो ये दिखाता है कि जो बिडर है, जो बिड कर रहा है टेंडर में, ही इज़ अ सीरियस बिडर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिड कर दिया, मिल गया देखी जाएगी बाद में कर लेंगे। इसलिए अर्नेस्ट मनी ली जाती है। कभी भी आप गवर्नमेंट के टेंडर में पार्टिसिपेट करेंगे तो वापस मिल जाती है, वो रिफंडेबल होती है। सपोज 10 लोगों ने बिड किया, उसमें से ऑर्डर तो एक ही को मिलेगा, तो बाकी 9 लोगों की अर्नेस्ट मनी तो इमीडिएटली वापस हो जाएगी, और जो ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहा है उसकी अर्नेस्ट मनी जो है वो उसको कुछ टाइम बाद वापस होती है, कभी 3 महीने बाद, डिपेंड अपॉन द वेरियस क्लॉजेज इनकॉर्पोरेटेड इन द टेंडर। ठीक है, पहला फ़ायदा ये है कि आपको अर्नेस्ट मनी जमा नहीं करानी पड़ेगी। दूसरा, यू विल गेट टेंडर डॉक्यूमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। जब भी आप गवर्नमेंट के टेंडर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आपको टेंडर डॉक्यूमेंट्स खरीदने पड़ते हैं, विच कंटेन्स द कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस ऑफ द प्रोडक्ट रिक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वो सब आपको टेंडर डॉक्यूमेंट्स परचेज करने पड़ते हैं, जिनकी कॉस्टिंग जो है 500 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या प्रोडक्ट है और कितने का ऑर्डर है। तो अगर आप एनएसआईसी के साथ सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम में एनरोल्ड हैं, तो आपको ये सब नहीं देना पड़ेगा। इसका फ़ायदा क्या है? अगर आपको अर्नेस्ट मनी नहीं देना पड़ा, तो इसका फ़ायदा क्या है? यस, एग्जैक्टली। अगर आपने साल के अंदर 10 टेंडर्स में पार्टिसिपेट किया और हर एक में 1-1 लाख रुपए की ईएमडी लगा दी, तो आपके 10 लाख रुपए तो वहीं पे ब्लॉक हो जाएंगे और आपको कैश फ्लो की प्रॉब्लम आ जाएगी। इसी को देखते हुए वी हैव स्टार्टेड दिस स्कीम। देन व्हाई इट इज कॉल्ड ए सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन? सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन क्यों कहते हैं? गुप्ता जी ने कुछ बताया इस बारे में? सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जब आप एनएसआईसी के साथ रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, तो यू डोंट नीड टू गो फॉर रजिस्ट्रेशन विद एनी अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। एज सच क्या होता है कि इफ यू वांट टू सप्लाई योर गुड्स टू रेलवेज, you need to get yourself registered with railways. If you want to supply your goods to defense, so you need to get yourself registered with defense. उसमें भी एयरफोर्स से अलग, नेवी से अलग, आर्मी से अलग, सबसे अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अगर आपने डीजीएसएनडी में सप्लाई करना है, तो ये आपको डीजीएसएनडी से अलग से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने एनएसआईसी के साथ रजिस्ट्रेशन किया है, तो ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। आप केवल एनएसआईसी के साथ रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, तो आपको बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। देन नेक्स्ट इज कंसोर्शिया एंड टेंडर मार्केटिंग। टेंडर, व्हाट डू यू मीन बाय कंसोर्शिया? एनी आइडिया? कंसोर्शिया
Exactly. Correct. Consortia is group of units who are manufacturing the similar or other same product. Group of units who are manufacturing the same or similar product. Then do you have you have heard of any consortia being made in India? There is one term called cluster. Have you heard of that cluster word? Cluster क्या होता है? How do you define a cluster? Cluster. Cluster is an area where you find the units who are into manufacturing of similar type of products. Cluster कुछ सुना है आपने? कहाँ पे कोई cluster का नाम मालूम है? अलीगढ़ is famous for lock cluster. Locks. अलीगढ़ के ताले famous है ना? Then Khurja for ceramics. Khurja for ceramics. Coimbatore for pumps, industrial pumps, और ये motors जो घर में लगती हैं पानी वाली. That. Then Ludhiana is famous for. That is Jalandhar. Ludhiana is for hosiery products. So NSIC is into consortia and tender marketing. Tender marketing में क्या होता है कि we participate in government tenders on behalf of SSI units, rather MSME units. कोई भी गवर्नमेंट का टेंडर निकलता है जिसमें कि SME अपने आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है ड्यू टू वेरियस रीजंस, वी पार्टिसिपेट इन दैट टेंडर ऑन देयर बिहाफ. ऑर्डर NSIC के नाम आता है. देन वी प्लेस द सप्लाई ऑर्डर ऑन MSME. दे डू द शिपमेंट एंड रेस्ट इज टेकन केयर ऑफ बाय NSIC. अब कोई भी SME जो है वो NSIC के थ्रू पार्टिसिपेट क्यों करना चाहेगी किसी टेंडर में? Obviously we charge some service charges for this, which is around 1.5% of the order value. तो कोई भी SME जो है वो NSIC के थ्रू पार्टिसिपेट इसलिए करना चाहती है क्योंकि कई बार टेंडर डॉक्यूमेंट्स के अंदर या टेंडर्स के कुछ ऐसे क्लॉजेज होते हैं which are not possible for any SME unit to fulfill. फॉर एग्जाम्पल कई बार ऐसे टेंडर्स निकलते हैं जिसमें ये लिखा रहता है कि ओनली दोज यूनिट्स हु आर हैविंग अ सर्टेन टर्नओवर कैन पार्टिसिपेट इन दैट. तो स्मॉल इंडस्ट्री है, उसके पास इतना टर्नओवर नहीं होता है, कैपेबिलिटीज़ होती हैं बट स्टिल एज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे आर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट. ऐसे केसेस में NSIC जो है वो पार्टिसिपेट करती है क्योंकि NSIC का जो टर्नओवर है इट इज़ अराउंड 50,000. तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है टर्नओवर की, पहली चीज़. दूसरी चीज़, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ऑर्डर प्लेस करने में प्रॉब्लम नहीं होती है. तीसरा, ऑडिट ऑब्जेक्शंस नहीं आते हैं और रिपीट ऑर्डर जो है उसके लिए टेंडर प्रोसेस नहीं करना पड़ता है. ठीक है जी. और कंसोर्शिया में क्या होता है कि वी पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट टेंडर्स बाय मेकिंग अ ग्रुप of people who are into manufacturing of same product. जैसे कि सपोज UPS का कोई ऑर्डर आ गया, चेन्नई में UPS का क्लस्टर है, तो ऑर्डर इतना ज़्यादा या टेंडर इतना बड़ा है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगल यूनिट टू पार्टिसिपेट इन दैट. इन दैट केस व्हाट वी विल डू इज वी विल क्लब 4 यूनिट्स, वी विल अलॉट द ऑर्डर एज पर देयर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और वी विल पार्टिसिपेट इन दैट टेंडर. दैट इज नोन एज consortia marketing. Then raw material distribution. We have got a tie-up with many bulk producers like Steel Authority of India Limited, then Rashtriya Ispat Nigam, then Hindustan Zinc, then Nalco, wherein we procure the raw material in bulk quantities across the country. We have got around 123 branches across the country.